नमस्कार गुरुदेव। Namaskar. Jai How are Gurdev. you all? How are you all? You're all keeping safe? No? जी गुरुदेव। Huh? Wonderful, wonderful. That's good. In short time, you could all take time and we all could sit and do some little chit chat, informal chit chat, right? Our honor गुरुदेव। Yeah. You know, India has been in the top of IT industry. Around the world, wherever you see, it's Indians who have taken lead in the IT industry. You all agree with me, right? Yes. You all know this. Even in Silicon Valley, it's the Indian crowd. Nearly 40-50% of people who are in IT there, or near 40%, over 40%, I would say, are of Indian origin. But still, India does not have its own social media app. So I had asked our people to start a social media app, and so that will be launched tomorrow. It's called Elements. It does the work of WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, everything in one. So our enthusiastic volunteers have worked day and night to make this possible. And it's the first super app of India that will be dedicated to nation tomorrow at 12 o'clock. You know, this is to really uphold the dharma. There should be fairness. You know, social media, sometimes these apps, they have their own preferences. They cut somebody, they cut someone's followers. Actually, the freedom of speech is not fully there, I think so. What do you think? Yes, that's completely correct. Do you all agree with me? Yes. So we will, definitely no one should abuse the social media. Abuse of social media is happening on one side, I agree. But freedom of expression, freedom of speech should not be curtailed. Ideology should not be the thing for any social media to decide what is right wing, what is left wing, what is center. This is none of any social media's prerogative to judge or decide on that. You know, sometimes they have a different perception of people. They think, oh, this person is right wing, so we are going to cut down their followers. And many of our, students were asking, what happened? Why I cannot log on to something has suddenly it all disappear. Many people, you know, I usually give some knowledge snippets every week, 2-3 times a week, and people just read that and enjoy. And I don't follow anybody, so they don't reply to me. Sometimes they reply, some other time they just acknowledge, they follow, and because they get some knowledge. So these type of activities in social media, which is all based somewhere outside, and the data goes all out somewhere there. There is no data security in this country. And so we thought we must do something which has secured data and secured in this country only. All the servers are here in India, data will be here, and a social media app which can have multiple functions. We will just show you what are the multiple functions this app is going to have. We called it Elements, Elyments. It's a little difference.
I think some of you are already in elements. Who are all on the elements already? Can raise your, and Tejinder is there, and yeah, okay. While we should continue to be present in all the medias, we should continue our Twitter, we should continue in all other medias. And of course, you're all big influencers. Each one of you can influence many people. And when we continue to influence them, at the same time, we have to make our own platform in India and make it stronger. And we will take this in all 156 countries. You know, it's already in many countries. People will be logging on in other countries also. No, we will do that. Gurudev, I had a query. Huh? Gurudev, Ashutosh. Okay, Ashutosh, go ahead. Pranam. My query was I wanted to know your views rather on Atmanirbhar Bharat, the recent TikTok ban, and how do you see the tech industry coming up, growing, and then replacing all the banned apps with indigenous products or products that are made in India for Indians by Indians? Yeah, I think it's necessary, no? What do you think? Right? We need to do that. Yeah. This is one step towards that. See, how soon we could get this off the ground, no? We could get these elements off the ground very quickly in record time. Yeah. We should do that. Yeah. You know, social media has become sort of bread and butter for our population, younger generation. Without that, they cannot survive. We need that. We need to do it. Yes. Thank you. Okay. Namaste and Jai Gurudev. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone who has joined us. A hearty welcome to Pujya Gurudev and all the panelists, all of you who have joined us this evening from various parts of the country and the world. The well-known panelists have come together not just because they are influential keyboard warriors. Their work and characters are beyond the character limits of 160. Social media for these guys are just a means to achieve their final goals, that is translating into the action on the field to serve the society and indie causes. Some of them are even prolific dancers in weddings. So thus they are a group of very young, passionate, resilient, intelligent, and highly committed dharmic warriors. I've been seeing them since 2009, ever since I am on Twitter and various social media forums. They are here in this panel not because they have got huge followings, but more because of the cause that they follow. So I consider it my big privilege to present all of them before you in what is going to be a very interesting session. Okay, without taking much time, let me introduce you to Dhaval Patel Bhai, who will be the host and will moderate this proceedings this evening. A digital entrepreneur with... Yes, wonderful. Wonderful, Suresh. Yeah. A digital entrepreneur, Dhaval Patel, with vast experience in running large-scale digital transformation programs for various MNCs and big political parties. He is a huge social media enthusiast and focuses primarily and prominently shares his views on topics related to public importance. A multilingual columnist, his pieces are regularly published in various papers, online portals, and on public policy, economy, and politics. So without much ado, over to him. The rest of the introductions he will do as they go along. Have a nice evening, all of you, and pranams, Gurudev. Wonderful. Pranam Gurudev. Dhaval. Sir, Gurudev, I am Dhaval Patel from Surat. So I am the organizer and host of this Bharat Ki Charcha session. So till now we had multiple Bharat Ki Charcha session with various leaders, state heads, intellectual philanthropists on various range of topics till now.
And today we have a privilege to host you on the topic of Dharma in challenging time. So Gurudev, as we see that in pandemic, which is resulting into global recession, job loss, information, misinformation, propaganda, and now we also have a war-like situation. So people are going through a very, very difficult times, and their patience is being tested. And while everyone is waiting that when situation will get normal. So today, Gurudev, we believe that Dharma can come to our rescue in this situation, and we seek your guidance on that. So without Yes, further delay, right. yeah, You are right. You are right. This crisis can turn into an opportunity for India. And this is the time that the Dharma can really stand up. Yeah. correct, correct. So, sir, Gurudev, without any further delay, I wanted to invite our first speaker, Shefali Vaidya ji, to ask a question on this topic. Shefali ji, you are on mute. Can you please unmute? Pranam Gurudev. First of all, I would like to thank Art of Living for giving us this opportunity on the eve of Guru Purnima for an interaction with you. It's a great honor. My question is actually very simple but very profound. We always talk about what the government should do for dharma, for the rights of Hindus, and for everything, or what gurus should do. My question to you, sir, is what all of us as individuals can do to make dharma as an anchor of our lives and make sure that all the challenges that we are facing as a society and as a religion, as Hindus, can be faced by us using our dharma as an anchor. What can we as ordinary Hindus do to make Yeah. sure that dharma is an anchor to our lives? Yes. You know, if you see in the world, people with anger, people with frustration or hatred, they are much more active than those who are peaceful, who are happy, and who espouse dharma. We see the negative mindset to be much more active. That should reverse. Now, people with positive mindset should work, should be more dynamic, should act. यही है ना, शांतियुत क्रांति चाहिए हमें, और ऐसा शांति नहीं चाहिए जो जिसमें कोई कुछ कर ही नहीं रहा. So we want people to be proactive while honoring the peace, honoring the brotherhood, honoring the broad vision of dharma. You see, this is where we miss. We must say all those who stand for dharma, don't be in a laid back mood. Become more active. Everyone contribute in a positive manner. Raise your voice against injustice and do your bit. Yeah. Gurudev, we have next Vikas Pandey from Delhi. He's one of the biggest digital influencer in India. So he has one question for you. Vikas Pandey ji. गुरुजी नमस्ते, मैं विकास पांडे. मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने आपको देख सकता हूँ इतने दूर बैठ के भी. मेरा क्वेश्चन था एक, जैसे इस पेंडेमिक में आपका जैसे बहुत अच्छी जो श्री तत्व करके बहुत अच्छी क्वालिटी के आयुर्वेद और बहुत सी चीज़ें देते हैं, तो आपका कोई रिकमेंडेशन है इम्यूनिटी बूस्टर के लिए जो देश भर में हम लोग उसका नाम पहुंचा सके, जो आई वोंट से मतलब आपके हिसाब से जो लगता है कि इस सिचुएशन में, इस कोविड के सिचुएशन में वो अगर लोग खाएं तो और उनकी बॉडी और तैयार हो सकती है, ऐसे उस आयुर्वेदा प्रोडक्ट को खा के और लड़ने को तैयार हो सकती है. तो आपका कुछ रिकमेंडेशन हो तो हम सब लोग को पता हो तो हम लोग देश भर में उसका नाम पहुंचाएं. या आयुर्वेद का अपना इम्यून बूस्टर किट बनी है अपना, उसमें शक्ति ड्रॉप्स करके ड्रॉप्स है, और टर्मरिक, हल्दी और अमृत, एंड अपना एक खबासुर करके एक और भी एक मेडिसिन है, वो सिद्धा और आयुर्वेद का मिलावट है. तो वो जो मिल करके बना है दोनों सिस्टम में. ये जो खबासुर बटी जो है ये काफी लोगों को राहत पहुंचाई है, मगर इसका अभी टेस्ट 5 जगह चल रही है.
बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, ICMR भी टेस्ट कर रही है और एम्स में भी इसका ट्रायल हो रहा है। ट्रायल का रिजल्ट आ जाएगा अभी 8-10 दिन में आ जाएगा, उसके बाद वो क्या नाम बताया बताएंगे। गुरुजी? और ये पब्लिकली अवेलेबल है क्या? खबासुर करके है, खबासुरवटी। तो वो और चेन्नई में काफी लोगों को उसको गवर्नमेंट ने दिया है, उनको काफी फायदा हुआ है। तो ये पैंडेमिक के लिए आयुर्वेद से अवश्य कुछ निकलाएगा, मगर हमें अभी क्लेम नहीं कर सकते जब तक वो साइंटिफिक प्रोसीजर से टेस्ट नहीं होता। वैसे तो हम जानते ही है फायदा हो रहा है, पर जब तक वो कहते ना, मंदिर में भी कहते, जब तक वो जल शंख से नहीं गिरता है तो तीर्थ नहीं माना जाता है। तो इस तरह से वो प्रोसीजर के लिए अपना वेट कर रहे हैं, वो आएगा शीघ्र। फिर that जरूर will बताइए be- उसे हमें। We'll Yeah, be more than that happy will to be- share and take it. Yeah. Gurudev, next we have Tajinder Bagga. He needs no introduction at all. Bagga ji, unmute कीजिए। जय गुरुदेव। देखा होगा जो एक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जमात है देश के अंदर, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल क्लेम करती है, आपने देखा होगा उन्होंने सरकार को क्रिटिसाइज करने के साथ वो इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने देश को क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया। आपने कई मौके पर देखा होगा जो कश्मीर के अंदर एक बच्ची का रेप हुआ, वहां पे भगवान शंकर के शिवलिंग को किस तरीके से कॉन्डम चढ़ा के, किस तरीके से एक डिफेमिंग तरीके से दिखाया गया, किस तरीके से हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कह के बदनाम करने की कोशिश की गई। और 2-3 घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि फरीदाबाद के अंदर एक जो झुग्गी के अंदर 2 बच्चों की शॉर्ट सर्किट के अंदर मौत हो गई, लेकिन उसे पूरे देश को अपने प्रोपेगेंडा किया गया कि दलितों को देखो हिंदुस्तान में जलाया गया। दूसरी घटना आपने देखी होगी कि पूरे मीडिया ने जिसको दिखाया कि ट्रेन के अंदर कुछ एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म को जला दिया। बाद में जब उसकी 15 दिन बाद जांच हुई तो पता लगा कोई धर्मों का मामला नहीं था, सीट को लेकर 2 लोगों के बीच में लड़ाई थी, जिसके कारण वो लड़ाई हुई और किसी ने दूसरे को मारा और वो मर गया, लेकिन उसको भी धर्म के एंगल से दिखाया गया। तीसरी घटना आपने देखी होगी बंगाल के अंदर, जो बांग्लादेशी इंस्टिलेटर थे उन्होंने एक नन की रेप कर दी, लेकिन देखो किस तरीके से उसके दिखाया गया कि हिंदुओं ने रेप किया और हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज पे अत्याचार होता है। तो एक तरह से सरकार को क्रिटिसाइज करने के चक्कर में ये लोग हिंदुस्तान को बदनाम करने के पीछे लग गए। इन लोगों को कैसे हैंडल किया जाए? तो तुम तो जानते हो इन सब का कुछ कुछ पर्सनल एजेंडा होता है। इस तरह से एक डिवीजन पैदा करो तो फिर उनको उससे फायदा हो लगता है भाई, ताकि और तो कोई टैलेंट नहीं, स्किल नहीं है उनको पॉलिटिकली आगे बढ़ने का। लोगों को भड़काओगे थोड़ा सा, फिर वो अपना ग्रुप बना लेंगे उसको लेके। ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी आपको देख के। आ जाएगा Yes, आपका now we तेज can से ही see- आपका चेहरा चमक रहा है। Actually, the light is coming from you, Gurudev. It's पावर we can see- हाँ Okay. तेजिंदर, इसमें क्या है, अभी देखो आप लोगों के वजह से अभी ये अवेयरनेस आया है। पिछले 4-5-7-8 साल में थोड़ा सा लोग अभी तो इसके प्रति सजग होने लगे। मैं कह रहा हूं कि अभी 8-10 साल पहले डरते थे लोग, डर के इसी देश में हम लोगों को ऐसा हालत था कि यहाँ 2008 में कितने साधु संत सन्यासी को आघात पहुंचा, पता है? बहुत लोगों को मारा। और स्पेशली वो क्या ओ माय गॉड या क्या कोई मूवी आया ना, उसके बाद कोई भी सन्यासी सड़क में जाता हो तो लोग उसको मजाक उड़ाते थे। हमारे पास पता नहीं कितने ऐसे सन्यासी आके रोए और उनको ऐसे ढक के जाना पड़ता जैसे कोई अपराधी हो। ऐसा
माहौल बना दी गई थी। मगर अभी काफी फर्क है। अब जैसे जब से प्रधानमंत्री खुद मंदिर जाने लगे, खुद धर्म के बारे में बातें करने लगे, संस्कृत की बातें कोट करने लगे, माहौल में काफी फर्क है। या धन्यवाद गुरुदेव. Gurudev, next we have Pradeep Bhandari with us. He is a pollster and he is also consulting editor of Republic. Pradeep ji, your question please. जय गुरुदेव, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि आपके साथ बात करने का मौका मिला. गुरुदेव जी, आज हम लोग डेथ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद है और हमने देखा था कि हिस्ट्री में कैसे स्वामी जी ने पूरे के पूरे यूथ को एक तरीके से देश के प्रति कंट्रीब्यूट करने के लिए एनर्जाइज और मोटिवेट किया था. और उस वक्त क्रिश्चियन मिशनरीज का बहुत ज्यादा बोलबाला था और उन्होंने उस वक्त धर्म की रक्षा की थी. तो आज जब हम लोग देखते हैं कि ये जो पूरी वोक जनरेशन है जो सो कॉल्ड कूल फैक्टर पे चलती है और हम लोग इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स हो गए, अमेजोन हो गए, इस पे इतना हिंदू फोबिक कंटेंट देखते हैं और वो पूरा का पूरा चले जाता है विदाउट सेंसरिंग. तो इस समय इस पूरे के परिप्रेक्ष्य के अंदर हम लोग किस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं कि जो यूथ है वो धर्मा की तरफ जाए और ये जो हिंदू फोबिक एक नैरेटिव चलाया जा रहा है यंग जनरेशन में, पर्टिकुलरली 17-18 साल के बच्चों में, उसको किस तरीके से काउंटर किया जा सकता है? थैंक यू. प्रदीप, ये बहुत सही प्रश्न है. अभी देखो, अपना आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से जो हम चला रहे हैं, यहाँ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, इतने सारे युवा इसमें हैं. आप देखोगे सुरेश नल्लिकाय तो जानते हैं, तेजिंदर बगा भी देखे हैं. तो जितने भी अपना प्रोग्राम होता है, सत्संग होता है, 70% यंग पीपल होते हैं उसमें, यंगस्टर्स ही होते हैं. अब हमने सेल्फ करके एक कोर्स किया जिसमें प्राणायाम है, मेडिटेशन है और कुछ हमारा एंशिएंट विजडम है, कैसे भारत ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया दुनिया को, ये सब बातें बताते हैं. और ये अभी इट हैज बीन पार्ट ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम फॉर इंजीनियर स्टूडेंट्स. जब लोगों ने किया ध्यान, मेडिटेशन किया, उनको पता चला रहे क्या चीजें हम खो रहे हैं. तो मैंने क्या किया, इसको हम पहले बाहर ले गए. जैसे स्वामी विवेकानंद जी जब बाहर गए तो हमारे लोगों की आंख खुली कि बाहर से जो आता है हम ज्यादा उसको स्वीकार करने लगते हैं. अपना बाहर इतने देशों में, माने कट्टर ईसाई देश है जैसे अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना में जब लोग सब गाने लगे, ओम नमः शिवाय भजन गाने लगे, गीत गाने लगे, इतना बड़ा वो लोग उत्सव मनाने लगे, मेडिटेशन का सब करने लगे, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होता है इससे मानसिकता में. इसमें यही बहुत आवश्यकता है, हमें मानसिक परिवर्तन. जब भी कोई व्यक्ति या कोई समुदाय अपना रूट्स को नहीं ऑनर करती है, अपना मूल को नहीं सम्मान देती है, उनमें आत्मसम्मान, आत्मशौर्य नहीं बढ़ सकता है. तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें बहुत आवश्यक है, योग और ध्यान के जरिए हमें जाना चाहिए बच्चों में. और इसमें ये बहुत स्किलफुली हमें करना बहुत आवश्यक है, स्किल होनी चाहिए. हम किसी की निंदा वंदा करते हैं तो उसमें कई लोगों का दिलचस्पी नहीं होता, मन नहीं होता है. फिर हमें उसको स्किलफुली विद गेम्स, विद पॉजिटिव थिंकिंग लाना पड़ेगा. वैसे अपना प्रयत्न चल रहा है इस दिशा में. Gurudev, so similar to this question posted by Pradeep Bhandari ji, so what we see in today's generation, that there seems to be a lack of belongingness among the people, and though ideological same, but they are still very different. So what we can do to increase belongingness of the people in current times? बिलोंगिंगनेस बढ़ाने के लिए
ध्यान से और प्राणायाम से बढ़िया कोई चीज मुझे नहीं लगा। दुनिया भर में मैंने ये देखा है, जब सुदर्शन क्रिया कराते हैं हम, सिर्फ 2 दिन का सुदर्शन क्रिया में उनके भीतर जो परिवर्तन आ जाता है, पहले तो शाकाहारी बनते हैं और वो ये सब ध्यान, मेडिटेशन और मंत्र, इन सब में भी उनको अपने आप रुचि आ जाती है, सत्संग में रुचि आ जाती है। और वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा जो पुरानी जो एक उद्गार है, वो लोग बहुत इजीली महसूस करने लगते हैं। धन्यवाद। Okay, go ahead. Gurudev, next we have Rishi Bagri from West Bengal. Rishi ji, your question please. प्रणाम गुरुदेव, आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है और एक बड़ी अच्छी एक पॉजिटिव फीलिंग जो हर समय आपसे मिलते हैं वो आती है, वो आ रही है। गुरुदेव, मेरा सवाल है अपने कल्चर को लेकर, और मैं आपको एक चीज स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता हूँ। ये 3 चीज है सर। एक आप ये देखिए सर, हम लोग दातून, जो हम लोग के यहाँ दातून बिकते हैं, जिसको हम लोग कोई छूना नहीं चाहता है, वही दातून नीम चू स्टिक्स के नाम पे यूएस वाले $25 में बेच रहे हैं, अ सिंपल दातून। एंड देन यू सी द योगा क्लासेस जो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है, नाउ द सेम योगा क्लासेस इन यूएसए इज कॉस्टिंग $25 एन आवर अगर कोई पर्सनल ट्रेनर ले तो। और ये हमारा टर्मरिक लाटे है, जिसको अपने हल्दी दूध हल्दी बोलते हैं, वो आज वहां पर $10 से $12 मिल रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस थिंग, द MIT स्टडीज, जो हम लोग अपने उपवास करते हैं और लोग हम लोग के उपवास पे मजाक उड़ाते थे कि आप उपवास क्यों कर रहे हो, MIT का स्टडी वो बोलती है कि वो अपने उपवास करने से स्टेम सेल रीजनरेट हो रहे हैं और मेटाबॉलिज्म डबल हो रहा है। मैं यही आपसे पूछना चाहता हूं कि हम लोग अपनी चीजों को मार्केट क्यों नहीं कर पाते ठीक से, और ये जब बाहर वाले उसको बेटर मार्केटिंग करके बेटर माइलेज ले लेते हैं और हम लोग यहाँ पर रह जाते हैं, और जब वो लोग मार्केटिंग करते हैं तब हम लोग उनको फॉलो करते हैं कि हाँ अब MIT ने बोल दिया है तो आज से मैं भी उपवास करूंगा। अच्छा, वो दूध हल्दी की ये स्टारबक्स ने लाटे टर्मरिक लाटे दे दिया है तो मैं भी आज से हल्दी दूध पीऊंगा टर्मरिक लाटे बना के। और अगर वो दातून जो कोई छूता भी नहीं था, क्योंकि हम लोग को लगता था कि भैया ये तो कोई अनपढ़ गवार लोग दातून करते हैं, हम लोग तो भैया कोलगेट वाले हैं, क्लोजअप वाले हैं, हम लोग दातून क्यों करें। लेकिन जब हम लोग जाते हैं यूएस के स्टोर्स में और दातून जब वो ऑर्गेनिक नीम चू स्टिक्स के नाम से बिकता है तो हम लोग उसको मतलब वही चीज को, दातून को भी हम लोग 1000 रुपया में वो एक बंडल खरीद लेते हैं, जो यहाँ पर शायद 20 रुपया में भी नहीं मिलता होगा, 20 रुपये से भी कम में मिलता होगा। तो ये हम लोग की जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लोग कैसे ठीक करें सर। हम लोग के पास सब कुछ होते हुए भी हम लोग को लगता है जैसे हम लोग के पास कुछ नहीं है, बाहर से हम लोग सब कुछ आइडियोलॉजी ले रहे हैं, तो इसका क्या उपाय है, आप इसका उपाय बताइए गुरुजी। प्रणाम। हाँ ऋषि, ये सही बोल रहे हो। ये मैं तो ये देखता रहता हूँ ना, बाहर भी बहुत हम देखते रहते, ऐसा होता है। खास तौर से हिंदुस्तानी ऐसा है, हिंदुस्तानियों में वो पुरानी वो मेंटालिटी है, अंग्रेजों ने कह दिया गॉडमैन, और हम लोग भी उसी को रटने लग गए कि गॉडमैन बाकी क्या शैतान के बच्चे हैं, ये सिर्फ हिंदू गुरु ही गॉडमैन है, बाकी सब शैतान के हैं क्या। एवरीबडी इज ए गॉडमैन, तो एवरीबडी बिलोंग्स टू गॉड, एनीवन हु बिलोंग्स टू गॉड दे आर गॉडमैन। नहीं, तो ये हमको मॉक करने के लिए लोग ऐसा करते थे। ऐसा ही आयुर्वेद का भी होता था। आज भी मैं कह रहा हूं, चाइनीज मेडिसिन अमेरिका में एक्सेप्टेड है, मगर आयुर्वेद का अभी तक हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिला। हम लोग इस पर स्ट्रगल कर रहे हैं। यूरोप में भी चाइनीज मेडिसिन इज लीगल, you can claim insurance for Chinese medicine, but why not? While Chinese medicine तो अपना आयुर्वेद का एक छोटा सा हिस्सा है, यहाँ से गया है वहां। इंडिया से बोधिसत्वा जब गए तो आयुर्वेद भी थोड़ा लेके गए,
फिर उन्होंने उसको थोड़ा वहां की जो हर्ब्स को थोड़ा तोड़ मरोड़ के कुछ बनाया। तो हमें इन सब चीजों को बढ़ाना है। पहले भारत में हमें सबको ये आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संस्कृति को साथ में जोड़ना आवश्यक है। इसीलिए हमने दिल्ली में विश्व सांस्कृतिक सम्मेलन किया। दुनिया के 156 देश के लोग आए। 30,000 आर्टिस्ट, 36,000 आर्टिस्ट, 36,000 आर्टिस्ट एक स्टेज में आए। और लेफ्ट विंग वाले और कुछ और लोग भी पॉलिटिकल पार्टी के इतना चेष्टा करी इसको किसी ना किसी तरह से तबाही कर दे, मगर कुछ हो नहीं पाया। बढ़िया ही प्रोग्राम हुआ। तो ये चेष्टा रहती है कुछ लोगों की। जी गुरुदेव। Gurudev, we have next Ashutosh Muglikar from Pune. He is company secretary by profession, and he is very known for putting his view very prominently on public policy economics. And funnily, he is also known as Garibo Ka economist on social media channels. Ashutosh Muglikar. धवल जी ने मेरे बारे में एक चीज नहीं बताई कि मैं लकी हूँ कि मुझे आपसे 2 बार प्रश्न पूछने का मौका मिल रहा है आज। तो क्या? गुरुदेव 2 बार प्रश्न पूछने का मौका मिल रहा है। गुरुदेव, मैं बहुत सारी छोटी, मीडियम साइज, बड़ी कंपनियों का कंसल्टेंट हूँ। मैं कंपनी के ओनर्स के साथ साथ कंपनी के एम्प्लॉइज के साथ भी मेरा इंटरेक्शन होता रहता है डे टू डे बेसिस में, प्रोफेशनल लाइफ में। तो मैं अभी बहुत देख रहा हूँ गुरुदेव कि लोगों के जॉब जा रहे हैं, उनको जो अप्रैल मंथ में जो सैलरी हाइक्स मिलती है वो नहीं मिली। बहुत लोगों के सैलरी कट्स भी हुए हैं। तो अपना आज का टॉपिक ये है कि धर्मा ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, चैलेंजिंग टाइम्स। तो इन लोगों के लिए जिनका जॉब लॉस हुआ है, सैलरी कट्स हुए हैं, जो बोनस नहीं मिला है या इंसेंटिव नहीं मिला है, हाइक नहीं मिला है, ऐसे लोग इस मौके पे क्या कर सकते हैं? हाउ डू दे फाइट एंड गेट थ्रू विद दिस? Yeah. Now this is very valid. I have been doing this the whole period of lockdown. अभी 2.5-3 महीने से मैं यही कह रहा हूँ, since March. Every day I am telling people to hold on, hold on. This is a passing phase. ये एक संकट की घड़ी है। अपना एक्सपेंसेस रिड्यूस करो, जितना है उतना काम करो और इनोवेटिव वेज पर देखो। क्या एक ट्रांजिशन है। जब ऊंची बिल्डिंग, इमारत खड़ी करनी हो तो पहले नीचे जाते हैं। इसी तरह से हमारे इकोनॉमी भी नीचे डिप हुआ है। सो दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। आगे एक बड़ा मौका है देश को बड़ा होने के लिए। काफी इंडस्ट्रीज इंडिया में आने लगेगी, जॉब की कोई कमी नहीं होगी यहाँ पर। ये सब होगा, मगर ये मुश्किल की टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? एक तो हम अपना विश्वास जताओ, बी कॉन्फिडेंट। नंबर 2, मेडिटेशन, योगा करो। इससे तुम्हारा एंजाइटी, फियर, साइकोसिस, ये सब चला जाएगा। यू विल फील बेटर। मेडिटेशन। तीसरी बात यह है, अपना स्किल्स डेवलप करने के लिए ये मौका है। अब बैठ के पढ़ो। अब समझ लेना, आप लौट के उस टाइम पे आगे जब एजुकेशन पढ़ते थे, आप स्टूडेंट थे, तो उस टाइप का वो करो। इस तरह से और सेल्फ सफिशिएंस की ओर चलो। देखो कितना आप 2-4 बीज लेके आओ घर पे, पॉट में अपना सब्जी उगा सके तो जाओ उगाओ। थोड़ा थोड़ा सा जहां जहां हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं वो करते जाएं। तो अपना स्किल्स बढ़ानी चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। और इंडिया एग्री बेस्ड कंट्री है। यहाँ खेती पर आधारित है हमारा वो है। तो भूखे कोई नहीं मरेंगे, मरने वाले नहीं हैं। अब सरकार ने भी, अभी पीएम ने भी 80 करोड़ लोगों के भोजन की व्यवस्था कर दी नवंबर तक। तो जब ऐसा हालत है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, खुदकुशी करने की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें।
Thank you, Gurudev. Gurudev. Gurudev, we next have Mandira Popat from Mumbai, and she is associated with Rambhav Prabodhini and also various green initiatives with union government as well as with various state governments. She has one question for you. Mandira ji. Pranam Gurudev, Jai Gurudev. Jai Gurudev, Mandira. It is an absolute honor and privilege to converse with you today, Gurudev, especially as someone who has personally of recent been practicing Sudarshan Kriya and have experienced the life-changing benefits of the same. I'm extremely grateful to you. My question is with regards to a topic I know to be very close to your heart. As we all know, we are witnessing the penalty for our unsustainable lifestyles in a world chasing growth. We are caught in this endless cycle of production and consumption. However, sustainable living has always been a core component of Indian culture and dharma, from worshipping nature to even aprahigriha. So I wanted to know, Gurudev, according to you, how can we translate our dharmic traditions and learnings with respect to sustainability in today's challenging environment? If you really look into the dharmic tradition, you know, it is so vast and so eco-friendly. Our tradition is so eco-friendly that you'll be startled when you know, deeply when you understand. No yajna, koi bhi puja yajna, without sowing the seed शुरू ही नहीं होता यहाँ. पहले जवार उगाते हैं मिट्टी में, फिर त्योहार शुरू होता है. So agriculture is part of our dharma and celebration. That's why it's called Rishi Krishi Desh. जिस देश में ऋषि ज्ञान और कृषि कर्म योग भी साथ में है. तो हमने क्या किया, बीच में कुछ समय हमने बिजनेस को बहुत निकम्मा समझा. We thought business is a third rate thing. This is a wrong notion our people had. Business was not given due respect as it must have been. So whenever you make a product, you sell it, oh ये तो धंधा कर रहे हैं. धंधा करना जैसे कोई बड़ा अपराध है, ऐसे लोग समझने लगे. यही कारण है भारत में गिरावट आ गई. नहीं तो एक समय हम लोगों का इतना ऊंचाई पे था. और ये धंधे को गलत समझना भारतीय थॉट नहीं, धंधे को निकम्मा समझना, निकृष्ट समझना, ये हमें बाहर से आई. ये फकीर वगैरह लोग आते थे, वो लोग सब धंधे को बड़ा वो समझते थे, निकृष्ट समझते थे. भारत में धंधे को कभी हमने निकृष्ट नहीं समझा था. पहले जब बाहर का आक्रमण आया तो हमारे धर्म पर भी, हमारे जो नेशनल कॉन्शियसनेस में भी वो हो गया कि हमने भी ये सोचने लगे धंधा माने कोई अपराध है. तो उससे हमें बाहर लाना पड़ेगा. जीवन में बैलेंस्ड ये क्या है, धंधे का अपना काम है और धर्म माने चैरिटी का भी अपना रोल है. ये दोनों साथ में लेके चलेंगे. हमारे देश में देखो जितने भी व्यापारी लोग थे, यही लोगों ने धर्मशाला बनाई. कोई राजा महाराजा ने धर्मशाला नहीं बनाई. जितने तालाब है, धर्मशालाएं हैं, हॉस्पिटल है, धर्मार्थ हॉस्पिटल, ये सब व्यापारी लोगों ने बनाया. क्यों? वो उनके धर्म में ये भी बताया गया है. तो हमें इस दृष्टिकोण को बदलना चाहिए देश में. और हमारा जो भी है ये नेचर के करीब है और हम बहुत फ्लेक्सिबल है इस मामले में. फॉर एग्जाम्पल पटाखा, जरूरी नहीं है दिवाली में हम सबको पटाखा फोड़ के ही त्योहार मनाना, ऐसा नहीं है. पुराने जमाने में ना रॉकेट थे ना ये सब क्रैकर्स थे. हम तो दिया जलाते थे, दिया जला के मिठाई बांटते थे, थोड़ा बहुत पटाखा फोड़ते थे लोग. बाद में वो एक बड़ा एक सबको एक रूढ़ी में आ गया. हम पद्धति और रूढ़ी को
थोड़ा सा अलग से समझना चाहिए। कुछ तो हमारी पद्धति है, पद्धति माने जो स्क्रिप्चरली हमें बताया गया, जैसे गंगा जी में जाओगे, गंगा जी को जल दो, गंगा जी में चावल डालो या जल दो, उनको सम्मान करो। अब हम क्या करते हैं, गंगा जी में साड़ी भी डालो, चूड़ी भी डालो, ये सब कहीं नहीं लिखा है। अब हम करते जाएंगे तो हम अपनी ही नदी को पोल्यूट कर देंगे। यहाँ कावेरी में अभी मंथ तुला मास में क्या करते हैं सब लोग, कावेरी माँ करके कावेरी माँ की गोद भरते। गोद भरने में क्या करते, साड़ी, चूड़ी, नारियल सब डालते हैं। हमें क्या है, ये शास्त्र में जाके देखोगे तो कहीं नहीं, शास्त्र में इतना ही बताया, नदियों को सम्मान करो और उसमें वही चीज पत्ता फूल डालो जो बायोडिग्रेडेबल है। हम वो सब छोड़ के अब वो सब वो नायलॉन की साड़ी डालोगे, चूड़ियां डालोगे, चुनरियां डालोगे, तो भाई हमने नदी का नदी में नदी के साथ हमने अच्छा नहीं व्यवहार कर नहीं। तो इस तरह से जैसे मेंढक शादी, बारिश नहीं हो तो मेंढक की शादी कराओ, ये रूढ़ी है, कहीं भी नहीं लिखा। किसी ने बोल दिया होगा गुस्से में, बारिश नहीं आ रहा तो क्या है, मेंढक को शादी कराओ। एक किसी ने, संत ने किसी को जो सताता हुआ व्यक्ति को ऐसे बोल दिया, उसने उसको लिटरली लेके गया, मेंढक को पकड़ के, पता कैसे चले कौन स्त्री है कौन पुरुष है वो मेंढक में, 2 मेंढक को लेके शादी कराने की चक्कर करी। और इन्हीं चीजों पर आलोचना ज्यादा होता है। हिंदू धर्म के वेदांत पर, सांख्य, योग, वेदांत, इन पर कोई आलोचना नहीं करते नहीं, आलोचना करते हैं। कई मंदिर में बच्चे को उल्टा लटकाया किसी ने, अरे शास्त्र में इसका कहीं भी जिक्र नहीं। ये रूढ़ी में आ गया ना, इन सब अंधविश्वासों को हम दूर करना हमें आवश्यक है। तो मैं बार बार कहता रहता हूँ, कई बार ये सब बोलता हूँ। हमने नेपाल में एक त्योहार आता, माता का त्योहार, वो एक माता का त्योहार में 5 लाख पक्षियों का बलि दिया जाता है और अलग अलग हर एक व्यक्ति को 5 तरह की पक्षी को मारना है। ये प्रथा चली आ रही थी। अब पिछले 5 साल से ये प्रथा बंद हो गई। क्यों? वहां हमने खूब कैंपेन लगाया, युवाओं को ट्रेनिंग दिया, युवाओं को बताया, वहां पंडितों को बताया, शास्त्र खोल खोल के दिखाया। तो अब क्या हुआ, लोगों के सहमति से सब समझ गए ये गलत है। 5 पक्षी माने हमारे 5 इंद्रिय, ये बाहर उड़ते रहते हैं, इनको बंद करो, अंतर्मुखी करो, ये असली बात है। अब देखो ये बात घटित हो गई। अब पिछले 2 साल से तो पूर्ण रूप से बंद हो गया, एक भी पक्षी का बलि नहीं चला। इस तरह से हमें हमारे धर्म जो है उसमें बार बार रिफॉर्म लानी पड़ती है, हमें लाना चाहिए। तो वो लोगों को पूरी तरह से समझाने से समझ जाते हैं। या हम बात करते रहते बहुत लंबा चलेगा। मेरे ख्याल से अभी राहुल बात करेंगे ना? जी, राहुल कौशिक फ्रॉम दिल्ली। राहुल जी, आपका प्रश्न। आशुतोष सर। प्रणाम गुरुदेव, मैं राहुल दिल्ली से। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज बहुत समय बाद आपके दर्शन करने का अवसर मिला है। मुझे लगता है आखिरी बार मैं आश्रम में ही आपके दर्शन करके आया था 2-3 वर्ष पहले। गुरुजी, मेरा एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है जो आज के समय बहुत लोगों के मन में है, और इस पेंडेमिक के कारण एक बड़ा फियर साइकोसिस, बड़ा स्टिग्मा क्रिएट हो गया है। आई हैव बीन लिसनिंग टू सो मेनी पीपल ऑन, जब मैं बात करता हूँ लोगों से, हम लोग सब करते हैं, तो एक फ्रेज चल रहा है सब जगह कि व्हाट्स हैपनिंग दीज डेज इज द न्यू नॉर्मल। बट हम जैसे सोशल जो लोग हैं गुरुदेव, जो इतने लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं रोज सोशल लाइफ में,
उन लोगों के लिए बड़ा अनयूजुअल है ये सब, घर में बैठना और लगातार घर में ही बैठे रहना. प्लस समटाइम्स वी फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड काइंड ऑफ. सो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि इज दिस एक्चुअली द न्यू नॉर्मल? शुड वी एक्चुअली कॉल इट द न्यू नॉर्मल, or the normal times which we used to cherish always will come back? Because I actually do not believe that virtual meets can actually replace the personal warmth that we experience when we sit with along with each other. No, of course, of course. This, new normal will be new only for a short period. Then it will become old. Then another new normal will come. So changes are bound to happen in society. After a very long time, such a change has happened. If you had gone through the net, you would have seen in 101 years ago, same thing happened in America. People had to wear the mask. You are aware of it, right? तो 100 साल पहले ऐसा हुआ था. हिंदुस्तान में भी हमारे आज़ादी से पहले 2-4 साल ऐसे रहा. प्लेग के वजह से लोग कोई इकट्ठे नहीं होते थे, दूर दूर रहते थे. तो ये ऐसा एक पासिंग फेज है. राहुल, तू ज्यादा चिंता नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा. ठीक है गुरुदेव. आपके रहते चिंता तो है ही नहीं गुरुजी. So Gurudev, that's where all questions from every one of us. Thank you so much for guiding every one of us and sharing your vast experience. Sir, before we close, we just wanted to hear your closing remarks or a message for all of us, which we can share further. प्रदीप ने तो बोल दिया ना, प्रदीप भंडारी. Already spoke. Yeah, everyone spoke. I have spoken, Gurudev. You've answered. Thank you. Yes. Okay, tomorrow we have this launch, Elements launch, and then you can all participate. You get the links, and I think invitation has been sent to you all, right? See if you have not sent. Suresh, make sure everybody gets the invite, no? Okay, all the best. प्रणाम गुरुदेव. गुरु पूर्णिमा के दिन आपका आशीर्वाद मिला, अच्छा लगा. शुक्रिया. Thank you so much for joining. Thank you, Gurudev. Jai Gurudev. Thank you. धन्यवाद. जय गुरुदेव. Thank you everyone for joining.